हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मनीष कुमार। सो बच्चों, अपने लास्ट के लेक्चर में क्या पढ़ा था आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो आपको लास्ट लेक्चर 1.7 को वापस देखना है। तो उसके अंदर अपने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट axial and equatorial point. So electric field at axis of dipole, this is electric dipole negative charge and this one is the positive charge, separated by distance 2a. So we find the electric field from center of dipole at point P, which is r distance away from center of dipole. कहाँ से? r distance away from center of dipole, and here we calculate the magnitude of electric field. Okay, so magnitude of electric field at axial point of dipole, that is equal to 2 times kp upon r cube. This is only magnitude हो, मतलब खाली क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी अपने फाइंड किया था एट द सेम डिस्टेंस आर। देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस आर, सो हियर वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. Actually direction of electric field is opposite to direction of electric dipole. Actually direction of electric dipole is from negative to positive. So this is the direction of electric dipole moment, but electric field in the direction. But here we have to find only magnitude of electric field at the equatorial point, so that is equal to kp upon r cube. Understood? Equation number 2. So dividing equation 1 and 2, we will get that. So dividing equation 1 by 2, we have electric field at the axial point divided by electric field at equatorial point is equal to, क्या हो जाएगा, 2kp upon r cube divided by kp upon r cube. So kp to kp cancel, r cube to r cube cancel, so remaining is 2, which implies that electric field at the axis of dipole is 2 times than electric field produced at equator of dipole. So in short, we can say that electric field produced by a point dipole or by a short dipole. So electric field produced by a short dipole at axial point is double than electric field produced by equator at same distance. Okay, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड produced by short electric dipole at axial and equatorial point is, so you can write that is EA is equal to 2 times of electric field produced at equator. Okay, clear? That uniform. Now student, we have to find the torque acting on dipole placed in uniform electric field. So first of all we have to consider uniform electric field. देखो तो कैसे अपने कंसिडर कर रहे देखना। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। If the electric field lines are uniformly distributed in a given region, so that electric field is uniform in that region, okay, and direction of electric field is from positive to negative side. Okay, understood?
So now I place a electric dipole, seen figure, ऐसे मैंने रखा. I say this is the center point of electric dipole. So negative to this side I take the positive charge plus Q, and this side I take negative charge minus Q. So here positive and negative charge both are separated by finite distance. I say 2a. कितनी distance ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 2a. Understood? Okay. I say O is the center point. O क्या है उसका center point? So I place electric dipole in such a way that angle between direction of electric dipole moment and electric field. So electric field की direction देखो ये है. It is shown by arrow. Is theta and direction of electric dipole is taken from negative to positive. मतलब ये क्या हो गई आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन. ओके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन. अंडरस्टूड? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन is from negative charge to positive charge and electric field is shown by black color arrow. So it is in that direction. Understood? So when I place electric dipole in uniform electric field, so we know that electric field is uniform. So now the force acting on positive charge, due to electric field, that is equal to कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई. पता है ना कितना फोर्स लगेगा, Q मल्टीप्लाई बाय E. सो ये फोर्स इधर लगेगा. दिस इज व्हाट क्यू ई एंड एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन. एट द सेम टाइम द फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज इज कितना होगा, माइनस Q मल्टीप्लाई बाय E. ये इस डायरेक्शन में होगा. सो दिस टू फोर्स try to rotate the dipole at about its center point. Okay, तो ये rotate करना चाह रहे हैं ऐसा. But they can't displace the dipole from this point to other point. Why? Because both the forces acting on dipole, which are equal in magnitude but opposite in direction, but they are non-collinear. Okay, if they are collinear then they cancel to each other, but they are non-collinear, that's why they can't cancel to each other. इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे बच्चों, वो तो समझ में आ गया, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएंगे. अब देखो, नाउ वी वांट टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. देखो ये फाइंड करना चाहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या बना दिया आपने, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया. देखो, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, दिस इज व्हाट ए बी और ये सी. पता चला? सो इन ट्राइंगल एबीसी ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, तो यहाँ पे आपको जो बीसी जो दे रहा है, बीसी क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces is कितनी हो जाएगी आपको पता है, देखो कितनी, दैट इज इक्वल टू BC. कितनी है, BC. तो BC क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, इज व्हाट BC. अब BC को अपने को फाइंड करना है. तो BC को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो आपको पता है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, क्लियर, ये भी थीटा होगा बिकॉज दे आर व्हाट करेस्पॉन्डिंग एंगल. सो आई वांट टू फाइंड द BC. तो मेरे पास में AC तो है, नहीं AC नहीं, AB मेरे पास में है, बट मैं फाइंड करना चाहता हूँ BC. सो कौन सा थीटा लेना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो आई विल टेक व्हाट साइन थीटा. क्या लूंगा मैं यहाँ पे, साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB. तो BC कितना है, BC का देखो वैल्यू कितनी होगी, वो तो अपने को फाइंड करनी है BC. और AB कितना है, 2A. अंडरस्टूड, AB कितना है, 2A.
तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन थीटा। देखो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन थीटा। तो ये अपने को मिली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अंडरस्टूड। सो नाउ द टॉर्क एक्टिंग, now torque acting on the dipole in uniform electric field कितना लगेगा टॉर्क? दैट इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू आपको पता ही था क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस multiply by magnitude of any one force, magnitude of any one force, one force। ओके देखो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपके पास में है ही, कितनी है ये ऑलरेडी आपको मिली, कितनी है, बी सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास में ही है बराबर। सो टाउ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, बी सी। तो 2a साइन थीटा मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपके पास में है ही बराबर। तो ये तो आप उसको रीअरेंज कर देते, देखो तो आफ्टर रीअरेंजिंग मैं इसको 2 के साथ में 2a के साथ में क्या लाता हूँ, q को ला देता हूँ, 2a q, उसके बाद में e ला दिया और यहाँ पे साइन थीटा। अंडरस्टूड। नाउ आफ्टर रीअरेंजिंग, so we know that electric dipole moment is given by what, perpendicular distance between two charges multiplied by magnitude of any one charge. So dipole moment is given by 2aq. So I can replace for this by p, और p e sin theta, पता चला बच्चों। So therefore अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ऐसे, इक्वेशन नंबर 1। So now in vector form it can be written as r tau vector is equal to p vector cross e vector बराबर। तो ये देखो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। So tau vector is equal to p vector cross e vector। अंडरस्टूड, पता चला। अब यहाँ पे दो केसेस ले रहे अपने, केस वन इफ डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि वो कैसे रखा हुआ है, इसको परपेंडिकुलर रख दिया, देखो डाइपोल मोमेंट को, तो परपेंडिकुलर जाएगा, एब्सोल्यूट आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 90 एंड साइन 90 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो इन दैट कंडीशन टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल विल बी मैक्सिमम। So that is equal to PE, प्लेसिंग इन इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर रखेंगे तब PE sin 90, so that is equal to PE। तो ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा डाइपोल के ऊपर, पता चला बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। केस 2, तो केस 2 के अंदर, केस 2 में बच्चों क्या कर रहे हैं अपने, दूसरी कंडीशन अपने यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दैट कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 वैल्यू 0 हो जाएगी। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज इक्वल टू मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू PE sin 0, so that is equal to 0। तो टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पता चला, तो टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आई से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो अच्छा। अब देखो तो ये तो आपने सब कुछ कर ही दिया है, बट थोड़ा आपको लीक करना चाहिए अच्छे मार्क के लिए, आधा मार्क और अच्छा मिलेगा। देखो
तो यहाँ पे कैसे लिखने का, लाइक ए कंस्ट्रक्शन दैट यू डिड इन 9-10 स्टैंडर्ड 9-10 में जो आपने किया वही रिपीट करने का है। तो यहाँ पे मैं क्या देखो वही थोड़ा लिख रहा हूँ, कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल which is placed in uniform electric field in such a way that angle between P and E is theta, बराबर, एज सोन इन फिगर। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा इसका, नाउ द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। पक्का बच्चों? तो ऐसे ये करना है बस। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल इसको समझने के लिए। चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।